میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں خواب میں مردے دیکھنے کے بارے میں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مردے دیکھنے کا مطلب بتانے والے ہیں۔ خواب میں مردے کو کچھ دیتے ہوئے دیکھنا، خواب میں مردے سے کچھ لیتے ہوئے دیکھنا، خواب میں مردے کو غمزدہ دیکھنا، خواب میں مردے کو روتے ہوئے دیکھنا، خواب میں مردے کو خوش دیکھنا، خواب میں مردے کو کوئی چیز دیتے ہوئے دیکھنا، یا خواب میں مردے سے بات کرتے ہوئے دیکھنا۔ ان تمام باتوں کا مطلب، ان تمام باتوں کی علامت اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں۔ لیکن دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو ہمارے اس چینل پر اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، خواب میں مردے کو زندہ دیکھنے کا یا زندہ انسان کو مردہ دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب: دوستو، خواب میں مردہ دیکھنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں اور ان کے الگ الگ مطلب ہوتے ہیں، جن کے مطلب اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ موت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک وفات صغریٰ یعنی کہ چھوٹی موت، اور ایک وفات کبریٰ یعنی کہ بڑی موت۔ چھوٹی موت وہ ہے جب بندہ سو جاتا ہے، یعنی کہ جب بندہ نیند میں چلا جاتا ہے تو اس کی وفات صغریٰ ہو جاتی ہے، یعنی کہ چھوٹی موت ہو جاتی ہے، اور جب بندہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کسی بندے کو نیند آتی ہے تو ہم اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور اگر دنیا میں اس کا رزق باقی ہوتا ہے، اس کی تقدیر میں رزق اور لکھا ہوتا ہے تو ہم اس کی روح واپس کر دیتے ہیں، اور اگر اس کا رزق پورا ہو چکا ہوتا ہے، اس کی تقدیر کا رزق وہ کھا چکا ہوتا ہے، تو ہم اس کی روح کو واپس نہیں کرتے ہیں۔ تو دوستو، پتہ چلا کہ سونا بھی ایک چھوٹی موت ہے، جو انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو وہ آسمانوں پر چلی جاتی ہے، اور آسمان پر جانے کے بعد ان لوگوں سے ملاقات کرتی ہے، ان لوگوں سے ملتی ہے جو پہلے سے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ اسی کو ہم خواب کہتے ہیں، جو ہمیں خواب میں نظر آتا ہے۔ تو چلیے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ خواب میں مردے کو دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا مردہ تھا جو حقیقت میں تو مر چکا ہے، لیکن خواب میں اس نے دیکھا ہے کہ وہ زندہ ہو رہا ہے اور زندہ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں سدھار ہونے کی علامت ہے، اس کو کچھ فائدہ ہونے کی علامت ہے، اس کی زندگی میں کچھ خوشیاں آنے کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں زندہ کو مردہ دیکھتا ہے، یعنی کہ خواب میں کسی ایسے شخص کو مردہ دیکھے جو حقیقت میں تو ابھی زندہ ہے، لیکن خواب میں اس کو مردہ دیکھتا ہے کہ اس کی موت ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی طبیعت میں خرابی ہونے کی علامت ہے، اس کو کچھ نقصان ہونے کی علامت ہے، اس کو بیمار یا کوئی مصیبت ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں اپنے مرحوم والدین کو خوش دیکھتا ہے، یعنی کہ حقیقت میں اس کے والدین کی موت ہو چکی ہے، اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اور اگر خواب میں ان کو خوشحال دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہونے والی ہے، اس کو کوئی دولت حاصل ہونے والی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے، اس کو کوئی خوشی میسر ہونے والی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی مرحوم والدہ کو، یعنی کہ حقیقت میں اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہو، اور وہ اپنی والدہ کو خواب میں زندہ دیکھے،
तो ये गम से निजात पाने की अलामत है, परेशानियां दूर होने की अलामत है, मुसीबतें दूर होने की अलामत है। और अगर कोई शख्स अपने वालिदैन को ख्वाब में गुस्से में देखता है, यानी कि हकीकत में उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया हो और ख्वाब में अपने वालिदैन को गुस्से में देखता है, अपने वालिदैन को गमज़दा देखता है, तो इसका मतलब ये है कि उस शख्स के कारोबार में कोई नुकसान होने वाला है, उस पर कोई परेशानी आने वाली है, वो किसी मुसीबत में मुब्तला होने वाला है। अगर कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे तो सदका करे, सदका मुसीबत को टाल देता है। और अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स को ख्वाब में देखता है जो मर चुका हो और उसको ज़िंदा देखता है और उससे ये पूछे कि तुम तो मर चुके थे, तुम्हारा तो इंतकाल हो चुका था, फिर तुम कैसे ज़िंदा हुए हो? और अगर वो शख्स कहे कि मैं मरा नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, तो इसका मतलब ये होता है, इसकी अलामत ये है, इसकी निशानी ये है कि उस शख्स को कोई खुशी मैसर होने वाली है, उस शख्स को कोई इनाम, कोई रिस्क ऐसा मिलने वाला है जिसको उसकी उम्मीद भी नहीं थी। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में मुर्दे को इस तरीके से देखे कि मुर्दा उसको कोई चीज़ दे रहा है और वो चीज़ दुनियावी है, वो चीज़ कीमती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको कोई खुशी मैसर होने वाली है, उस इंसान को कोई दौलत हासिल होने वाली है और उसको ऐसी जगह से रिज़्क होने वाला है, ऐसी जगह से रिज़्क मिलने वाला है जहाँ से मिलने का उसे गुमान भी नहीं था, जहाँ से रिज़्क मिलने की उसे ख्वाहिश भी नहीं थी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में मुर्दे को इस तरीके से देखता है कि कोई मुर्दा है और उसको कोई खाने की चीज़ दे रहा है, कोई ऐसी चीज़ दे रहा है जिसको खाया पिया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस इंसान को हलाल रिज़्क मिलने वाला है, उसकी रोज़ी हलाल होने वाली है और हलाल रिज़्क वो तलाश करने वाला है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में इस तरीके से देखता है कि वो ख्वाब में कोई कीमती चीज़ मुर्दे से ले रहा है, मुर्दा उसको कोई ऐसी चीज़ दे रहा है जो बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सलाहियत पाने की अलामत है, दौलत हासिल होने की अलामत है, रिज़्क में बरकत होने की अलामत है और कोई खुशी मैसर होने की अलामत है। और अगर कोई शख्स मुर्दे को कोई अपनी कीमती चीज़ दे रहा है, कोई अपनी ऐसी चीज़ दे रहा है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये होता है ये गरीबी आने की अलामत है, तंगदस्ती आने की अलामत है, परेशानी आने की अलामत है, कोई नुकसान होने की अलामत है। अगर कोई शख्स मुर्दे से बात करते हुए देखता है और ये बात ना ही गमज़दा है ना ही खुशी वाली है, बल्कि एक आम बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान मुर्दे से बात कर रहा है उसकी उम्र में बरकतें होने की अलामत है, उसकी लंबी उम्र होने की अलामत है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में मुर्दे को ऐसी चीज़ दे रहा है जो वो खुद यूज़ करता है, यानी कि जो वो खुद खाता है, अगर वो चीज़ मुर्दे को दे रहा है, या कोई कपड़ा पहनता है वो चीज़ मुर्दे को दे रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो उसकी भी वफ़ात होने वाली है, या तो उसका भी वक्त ख़त्म होने वाला है, या फिर उसके कारोबार में कोई नुकसान होने वाला है, या फिर उस पर कोई परेशानी आने वाली है, उस पर कोई मुसीबत आने वाली है, या फिर उसके घर में गरीबी होने वाली है, या फिर उसके रिज़्क में तंगदस्ती होने वाली है और उसके रिज़्क से बरकत ख़त्म होने वाली है। अगर कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे कि वो मुर्दे को कुछ दे रहा है और वो उसकी कोई पर्सनल चीज़ है, यानी कि उसके कोई पहनने की चीज़ है या उसके खाने की कोई चीज़ है, अगर कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखता है तो उसको चाहिए कि वो सदका करे, क्योंकि ये मुसीबत आने की अलामत होती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में मुर्दे को इस तरीके से देखता है कि मुर्दा उसके सामने आया है और वो खुश मिजाज है, खुशी में है, गम उसके चेहरे पर नज़र नहीं आता, बल्कि खुशी ही खुशी उसके चेहरे पर नज़र आती है और वो खुशी का इजहार भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस इंसान को अच्छे काम में मुब्तला होने की अलामत है, बुरे कामों से दूर होने की अलामत है, उसको कोई खुशी मैसर होने की अलामत है, कोई फ़ायदा हासिल होने वाला है, उसके कारोबार में, उसके रिस्क में बरकत होने वाली है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में मुर्दे को परेशान हाल देखता है
یا ख्वाब में मुर्दे को गमज़दा देखता है या ख्वाब में मुर्दे को रोता हुआ देखता है, तो इसकी अलामत ये है कि उस इंसान पर कोई मुसीबत आने वाली है, उसके रिज़्क में बेबरकती होने वाली है, उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आने वाली हैं और उसकी ज़िंदगी में मुसीबतें दाखिल होने वाली हैं। और ख्वाब में मुर्दे को रोते हुए देखना, ख्वाब में मुर्दे को गमज़दा देखना, इस बात की भी अलामत हो सकती है कि वो इंसान किसी गलत कामों में मुब्तला होने वाला है, या वो इंसान हराम कमाई करने वाला है, या वो इंसान बुरे दोस्तों की सोहबत में जाने वाला है। अगर कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे कि उसने मुर्दे को ख्वाब में रोते हुए देखा है, तो वो गलत कामों से बचने की कोशिश करे, बुरे लोगों की सोहबत, बुरे दोस्तों की सोहबत इख्तियार ना करे, यानी कि बुरे लोगों से दूर रहे, बुरे लोगों की महफिलों से दूर रहे और नेक लोगों में बैठे। और अगर कोई शख्स ख्वाब में मुर्दे को परेशान हाल देखता है, अगर वो इंसान ख्वाब में मुर्दे को इस तरीके से देखता है कि कोई उसका अहलो अयाल है, यानी कि कोई उसके घर वाले हैं और वो परेशान हाल नज़र आ रहे हैं, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और रो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उस बंदे को उनके लिए ईसाले सवाब करना चाहिए, उनके लिए सदका करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करना चाहिए, उनकी सलामती की दुआ करना चाहिए। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने किसी तरीके से कोई चीज़ ख्वाब में देखी है और आप मतलब जानना चाहते हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली वीडियो में आपके सवाल को ऐड किया जाएगा। दोस्तों, हमने आपकी स्क्रीन पर एपिसोड की प्लेलिस्ट लगा दी है, आप हज़रात उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके और भी एपिसोड देखकर अपने इल्म में इजाफा करें। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।